একটি গ্রামে রমেশ আর অনামিকা এক দম্পতি থাকত। রমেশ নিজের মা শারদাকে খুব স্নেহ করত। শারদা নিজের বাড়িতে কিছু না কিছু কাজ করতেই থাকত, ফলে তার শারীরিক পরিস্থিতি বেশ ভালোই ছিল। রমেশ চাষবাস করে নিজের পরিবারের দেখাশোনা করত। রমেশের চাষের জমির পাশেই একটি নদী ছিল। চাষবাস করার পরে সে ওই নদীটিকে দেখত আর সেখানেই বসে বিশ্রাম করত। একদিন অনামিকা রমেশের জন্য খাবার নিয়ে চাষের জমিতে যায়। ওগো, তুমি সবসময় এই নদীর তীরে এসেই কেন খাবার খাও? কি ভালো লাগে তোমার এখানে? সেরকম কিছু নয় অনামিকা, আমার প্রকৃতি খুব ভালোবাসে। এরকম ঠান্ডা বাতাবরণে জলের আওয়াজ শুনতে শুনতে খাবার খেতে আমার বেশ ভালো লাগে। আচ্ছা, একটা কথা বলে দেখি, তোমার ভালো লাগে না বুঝি এসব কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারও এখানে বসে খাবার খেতে বেশ ভালো লাগে। আচ্ছা, মা কি করছে এখন? মা তো কিছু না কিছু কাজ করতেই থাকে। এই বয়সে যদি বলি কিছু করো না, আমার কথা সে শোনেই না। মায়ের কথা তো তুমি সবই জানো, সে বসে থাকতে পারেন না। আজকেও তিনি বাজারে গেছেন সব লঙ্কাগুলোকে জড়ো করে সেগুলোকে বিক্রি করতে। আচ্ছা। তারপর অনামিকা আর রমেশ এদিকের ওদিকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলাবলি করে। শারদা ওদিকে শহরে গেছিল। শহরে গিয়ে বাজারে শারদা লঙ্কা বিক্রি করে আসে। ঠিক তখনই সে একজন রবীন্দ্র নামের লোককে দেখতে পায় যে সেখানে বসে মাছ বিক্রি করছিল। ওহে, এগুলো কি? এই মাছগুলো তো বেশ ছোট ছোট। এগুলোকে কোথা থেকে আনলে? আর কোথা থেকে? নদী থেকে এনেছি, পাশের গ্রাম থেকে কিনেছি। বেশ দামি এগুলো। পাশের গ্রাম থেকে না এনে নিজেদের গ্রামের নদীতেই তো এর চাষ করতে পারো। তাতে তোমার সস্তাও পড়বে আর লাভও ভালো পাবে। তাই বুঝি? এসব আমরাও জানি, আপনার বলার দরকার নেই। এই নদীর ওপরে কোনো বিশ্বাস হয় না বাপু। যখনই বন্যা আসে সব মাছেদেরকে বয়ে নিয়ে চলে যায়। তখন আমরা কি করব? অত ক্ষতির চেয়ে ভালো পাশের গ্রামে গিয়ে শান্তিতে মাছ কিনে নিয়ে আসা। বড়দের কথা শুনতে হয়, কিন্তু তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না বাপু যে তুমি তা করো। ভালোই বলেছেন। এখন সকাল সকাল বৌনির সময়, যান দেখি এখান থেকে। রবীন্দ্রর এরকম কথা শুনে শারদা খুব বিরক্ত হয়। তারপর সেখান থেকে সে চলে যায়। বাড়ি ফিরে দেখে বৌমা খুব সুস্বাদু, যার থেকে বেশ ভালো গন্ধ বেরোচ্ছে এমন কিছু বানাচ্ছে। গন্ধ শুনেই তার খুব আনন্দ হয়। ও বৌমা, কি রান্না করছো? খুব ভালো সুগন্ধ আসছে। শাশুড়ি মা, আপনি বেগুনের তরকারি খুব পছন্দ করেন না? তার সাথে শুটিও আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে যদি পাঁপড় বা চিপস ভেজে নিই, আহা, খেতে খুব ভালো লাগবে। আহা মা, খুব ভালো। শুনেই মুখে যেন জল আসছে। চলো দেখি। শারদা আর বৌমা গিয়ে সেই সুস্বাদু ব্যঞ্জনগুলো খেতে লাগে। তারপর শারদা বাজারে যা কিছু হয়েছিল সেগুলো বলে। বাজারে একটা লোক এসেছিল বুঝলে, সে আবার মৎস্য পালনের নিয়ে কি কি সব বলছিল। শুনে এত রাগ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এক লাথ মারি। তারপর ভাবলাম মিছিমিছি কি দরকার, তাই চুপ ছিলাম। ওর থেকে তো ভালো আমি মাছ বিক্রি করে দেবো। তাই আজ থেকে আমিও মাছ বিক্রি করব ভেবেছি। শাশুড়ি মা, আপনি কি ভাবেন আপনি যা করতে যাচ্ছেন সেটাও জানে না, তাই তো? আপনি মাছ বিক্রি করতে যাবেন না ওর উপরে রাগ করে। আমাদের কাছে মাছ কেনার মতনও তো অত টাকা নেই। শোনো, দৃঢ়তার সাথে কিছু সিদ্ধান্ত নিলে ঈশ্বর তখন তাদের সাহায্য করেন। আমরা শুধু চেষ্টা করব, বাকি ঈশ্বরের ইচ্ছে। এভাবে শারদা আর অনামিকা বলাবলি করে। কথা বলাবলি হওয়ার পরে শারদা মাছের বাজারে চলে যায়। সে যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, রাস্তার মাঝে দেখে একটি বয়স্ক লোক মাছ বিক্রি করছে। তাকে দেখে শারদা খুব ভয় পেয়ে যায়, কিন্তু তার কাছে যে মাছগুলো ছিল সেগুলো খুব চকচক করছিল। তা দেখে সে তার কাছে যায়। ও দাদু, আপনার কাছে যে মাছগুলো আছে সেগুলো বিক্রি করবেন? বেশ ভালো লাগছে। এই মাছগুলোকে আমি বিক্রি করার জন্য রাখিনি। নদীতে গিয়ে খুব কষ্ট করে এই মাছগুলোকে ধরে এনেছি। পুরো এক সপ্তাহ পরিশ্রম করার পরে এগুলোকে ধরতে পেরেছি। মাছ ধরতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তবে এই ছোট ছোট মাছগুলোকে ধরা গেছে। আমার নাতি আসছেই হয়তো। মাছ ধরার দরুন আমার খুব জোরে আঘাত লেগেছে, তাই আর চলতে পারছি না। নাতি এলেই এগুলোকে নিয়ে আমি চলে যাব।
সারদার সাথে কথা বলতে বলতে ওই বয়স্ক লোকটি সেখানেই পড়ে যান। মাছ ধরার দরুন তার খুব আঘাত লেগেছে হয়তো, তাই সে পড়ে গেছে। সারদা এভাবে মনে মনে ভাবতে লাগে। অনেকক্ষণ ধরে তিনি ওঠেন না। তারপর সারদা তাকে ওঠাতে গিয়ে দেখে যে তার আগেই মৃত্যু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে তার প্রতিবেশীরা এসে তাকে নিয়ে যায়। বয়স্ক লোকটির মাছগুলো সেখানেই পড়ে থেকে যায়। যেহেতু আর কিছু করার ছিল না, তাই সারদা সেই ছোট ছোট মাছগুলোকে বাড়িতে নিয়ে আসে। বৌমাকে সব কথা বলার পরে সে নদীতে নিয়ে যায় সেই মাছগুলোকে ছাড়ার জন্য। রাস্তা দিয়ে যখন সারদা যাচ্ছিল, তার পা মাটিতে পিছলে যায়, আর সেই মাছগুলো চাষের জমির মাটির মধ্যে সব চলে যায়। হায় রে, সব মাছগুলো কাদায় চলে গেল। আচ্ছা মা, ছাড়ো, যেতে দাও। মাছগুলো চাষের জমিতে আমাদের ফসলকে সাহায্যই করবে। এভাবে শাশুড়ি বৌমা ভাবতে লাগে। কিছুদিন কেটে যায়। তারপর ওই ফসল থেকে শাশুড়ি বৌমা আরো বেশি মাছ পেতে লাগে। শাশুড়ি বৌমা ভাবে ওই মাছগুলোকে কেটে এনে তারা রান্না করবে। যেই না তারা মাছগুলোকে কাটতে যায়, সেখান থেকে টাকা বেরোতে লাগে। মাছেদের থেকে টাকা বেরোতে দেখে শাশুড়ি বৌমা খুব আশ্চর্য হয়, আর তারা খুব খুশিও হয়। সেই মাছের গাছেদের থেকে তারা অনেক টাকা পায়, আর সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে। এভাবে একটি গরিব পরিবার দেখতে দেখতে ধনী পরিবার হয়ে ওঠে। তার সাথে সাথে সারদা আর অনামিকা खूब आनंदे जीवन यापन करते शुरू करे। रामपुर नाम के गांव में शारदा अनामिका एक गरीब सास बहू रहती थी। अनामिका के पति रमेश अपने जीवन यापन करने के लिए मछलियां पकड़ने का काम किया करता था। उनका परिवार बहुत गरीब था, उनके पास कुछ भी सुविधाएं नहीं थी और जो वो चाहते थे वो पाना बहुत ही मुश्किल था। इसी तरह एडजस्ट कर रहे थे और वो खुश थे। एक दिन अचानक से रमेश को बहुत जुकाम और खांसी होने लगती है। अरे क्या हो गया तुम्हें? इस तरह क्यों खांस रहे हो? अजी सुबह में ही तो आप ठीक थे, अभी अचानक से क्यों खांस रहे हैं? सुबह सुबह रोज मैं मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ ना, इसीलिए खांसी हो रही है। पानी की वजह से जुकाम हो गया। मैं ये नहीं काम कर सकता, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है। फिर तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए। हमारे पास अभी बहुत कम पैसे हैं अनामिका, अगर हम अस्पताल चले गए तो कल खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा अनामिका। अरे बेटा वो पैसे ही है, फिर से कमा लेंगे। पहले जाके अपनी सेहत ठीक करो। चलो डॉक्टर के पास अभी चलते हैं। फिर अनामिका और शारदा रमेश को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अच्छे से उसकी जांच करते हैं। डरने की कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा परिश्रम की वजह से वो थक चुका है। अगर इसी तरह चलता रहा तो सेहत साथ नहीं देने वाला, लकवा मारने का खतरा है इन्हें, इसीलिए 1 महीने तक इसे कोई काम करने ना दे। इसे घर पे आराम करने दे और विश्राम ले, और साथ ही अच्छा भोजन लेते रहे। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की बातें सुन के अनामिका सोचने लगती है और वो फैसला लेती है कि अपने पति को वो मछलियाँ पकड़ने अब नहीं भेजेगी। घर पहुँचने के बाद वो सोचती है इस बारे में वो अपनी सासू माँ से बात करेगी। फिर तीनों घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद वो रमेश को अच्छे से दवाई देके सुला देती है और कहती है उसे ताकि वो आराम करे, और सासू माँ को लेकर वो बाहर निकल आती है। क्या हुआ? तुम मुझे बाहर क्यों ले आई? कुछ कहना चाहती हो? हाँ सासू माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, पर यहाँ नहीं, वो सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, इसीलिए हम बाहर चलते हैं। चलिए, चलते चलते बात भी कर लेंगे। अनामिका और शारदा घर से बाहर निकल आते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ के बातें करने लगते हैं। सासू माँ, कुछ दिनों के लिए हम इन्हें मछलियाँ पकड़ने नहीं भेजेंगे। आप देख रही है ना कैसे इन्होंने अपनी सेहत को बिगाड़ रखी है। हाँ अनामिका, तुमने सही कहा, पर अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल होगा। मैं तो यही सोचे जा रही हूँ। यही सोच के तो मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है सासू माँ। कल से हम दोनों मछलियाँ पकड़ने चलेंगे। जब वो अकेले जाते थे तो कितनी मुश्किलों के साथ मछलियाँ पकड़ के लाते थे। अब तो हम दोनों साथ है सासू माँ, हम तो ज्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे, सेहत भी ठीक हो जाएगी और सब खुश रहेंगे। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। जहाँ बेटे की खुशी की बात आती है, कौन माँ ना कह सकती है। ठीक है, हम दोनों कल से मछलियाँ पकड़ने चलेंगे, ठीक है ना बेटा? ऐसा कहकर शारदा और अनामिका मछलियाँ पकड़ने जाती है। रोज वो मछलियाँ पकड़ती है और उन्हें बेचती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। इस तरह मछलियाँ बेचकर वो कुछ पैसे जमाते हैं। उन पैसों से वो रमेश का अच्छा इलाज कराते हैं और बाकी पैसों से वो घर का राशन का सामान खरीदते हैं। एक दिन जब अनामिका वहाँ मछलियाँ बेच रही थी, उसकी पड़ोसी पार्वती वहाँ आती है। क्या अनामिका,
हमेशा मछलियाँ पकड़ना, पति का देखभाल करना, बस इतना ही काफी है। बिल्कुल सही कहा पार्वती, यही तो पत्नी का धर्म है। तुम्हें ऐसा लगता है तो काफी है क्या? तुम्हारी शादी बहुत पहले हुई थी, पर अभी भी तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। बच्चों के बिना संसार अधूरा होता है। कोई फायदा नहीं, बच्चे ही तो ख्याल रखते हैं। फिर तुम बच्चे क्यों नहीं ले रही हो? ऐसे आजाद क्यों घूमना? ऐसा रहना बिल्कुल ठीक नहीं। जल्दी से कुछ खुशखबरी सुनाओ, ठीक है ना? पार्वती की बातें सुन के अनामिका को बहुत बुरा लगता है, पर वो हाँ कह देती है। काफी देर तक उसको पार्वती की बातें याद आती है और वो दुखी हो जाती है। अगर वो इस विषय में सासू माँ से कहती तो सासू माँ चिंतित हो जाती और पार्वती को ही डांटती। हर दिन की तरह उस दिन भी सास बहू दोनों मिलके मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। मछलियाँ पकड़ने के दौरान भी अनामिका को लगता है कि बच्चे अगर होते तो सच में अच्छा होता। सास बहू इस तरह मछलियाँ पकड़ते हैं। बेटा अनामिका, आज मुझे लग रहा है कि हम बहुत बड़ी मछली पकड़ने वाले हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है सासू माँ, खींचने पर भी हमारा जाल आ नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मछली है। सास बहू मिलके उस बड़े से जाल को खींचकर बाहर निकालते हैं। उस जाल में बड़ी मछलियाँ थी। उन्हें लेकर शारदा और अनामिका घर पहुँचते हैं। उन बड़ी मछलियों को देखकर शारदा बहुत खुश होती है। वाह, कितनी बड़ी मछलियाँ! आज तक इतनी बड़ी मछलियाँ नहीं देखी हमने। अहो भाग्य! सासू माँ देखिए, इसके पेट में कुछ घूम रहा है। शारदा अनामिका ने गौर किया कि उस मछली के पेट में कुछ घूम रहा है। वो चाहते थे ये जानना कि आखिर में उसके पेट में क्या है। ये जानने के लिए वो उस मछली को काटना चाह रहे थे। सासू माँ, मैं इस मछली को काटने जा रही हूँ, आप दूर चली जाइए। सावधानी से काटना बेटा। अनामिका उस बड़ी सी मछली को काटती है। जैसे वो काटती है, वो मछली दो हिस्से में बट जाती है। उस मछली के पेट से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। उस बच्चे को देखकर शारदा अनामिका दोनों ही आश्चर्य हो जाते हैं। अरे ये तो चमत्कार है। मैं दुखी हो रही थी कि हमारा संतान नहीं है। ईश्वर ने संतान दे दिया हमें। मैं बहुत खुश हूँ सासू माँ। हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। अनामिका उस बच्चे को उठाकर उसके साथ खेलने लगती है। उसकी खुशी उमड़ पड़ती है। मिनटों में उसका घर खुशियों से रोशन हो जाता है। जब अनामिका बच्चे के साथ खेल रही थी, रमेश वहाँ आ जाता है। जो कुछ भी हुआ वो रमेश को बताती है। रमेश भी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उस दिन से वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह परवरिश करने लगे। रमेश और अनामिका बहुत खुश थे और इस तरह पूरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई।